اسرائیل نے فلسطین کی حمایت کرنے والے ممالک کو بھی نشانے پر رکھ لیا ہے۔ کل شام کے شہر دمشق اور حلب کے ایئرپورٹس پر بمباری کی ہے اور دمشق کو عین اس وقت نشانہ بنایا گیا جب کچھ ہی دیر میں وہاں ایرانی وزیر خارجہ کا طیارہ لینڈ کرنے والا تھا۔ اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے فلسطینی شہداء کی تعداد 1400 سے بڑھ گئی ہے، زخمی تقریباً 6800 تک ہو چکے ہیں۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت سابق سفارتکار ڈاکٹر جمیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی یہ جو ساری صورتحال ہم نے بتائی ہے، اس پر ناظرین کو ہم نے اپڈیٹ کیا ہے کہ اب یہ جو جنگ ہے یہ آہستہ آہستہ ہمیں شام اور لبنان کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ کتنی خطرناک صورتحال ہے؟ جی، یہ کیونکہ اسرائیل کو یہ زوم ہو گیا کہ امریکی بحری بیڑا، ڈسٹرائر، کیریئر وہ پہنچ گیا اور امریکی ساز و سامان سے ان کے C-130 بھی پہنچ گئے ہیں وہاں تو، اور ساتھ میں برطانیہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس کی نیوی بھی اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچ رہی ہے۔ تو اسرائیل کو کیونکہ نیٹو فورسز کی تمام کی مدد ملتی جا رہی ہے اور بہت تیزی سے ملتی جا رہی ہے، اور یو کے جو وہاں کے منسٹر ہیں ڈیفنس، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص فلسطین کا جھنڈا برطانیہ میں اڑائے گا تو وہ سمجھا جائے گا کہ دہشت گردوں کی حمایت میں ہے۔ تو اس قسم کی اگر حکومتوں کی طرف سے، لیکن عوام ان ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ایک کثیر تعداد میں پروٹیسٹ کر رہی ہے اسرائیل کے ظلم و ستم کے بارے میں، اور اسرائیل اور اس میں حماس کا حملہ، اس پر میں آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، اور اس کے جیو پولیٹیکل تناظر پر بھی آتا ہوں۔ لیکن ابھی میں یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کی جو نیٹو کی فورسز ہیں یا نیٹو کنٹریز ہیں، ان کے سربراہان تو ظاہر ہے بہت فیور کر رہے ہیں، لیکن ان کے درد دل رکھنے والے لوگ وہ نکل رہے ہیں باہر وہاں ان کی مدد کے لیے۔ تو لہٰذا اور دنیا اسلام میں تو لوگوں کے یقیناً کافی ہمدردیاں، نہ صرف ہمدردیاں بلکہ ان کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان سمیت۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا پلیٹ فارم جو کہ OIC کا پلیٹ فارم ہے، اس پر کوئی جوں نہیں رینگتی۔ ایک انہوں نے چھوٹی سی کال دے دی ہے کاؤنسل آف منسٹرز کی، جبکہ یہ بات اس بات کا متقاضی تھا، یہ حملہ، یہ واقعہ، یہ ظلم، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آرٹیکل اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 9 کے تحت ایک ایمرجنسی میٹنگ، ایمرجنسی سبمٹ، جیسے کہ ایکسٹرا آرڈنری سبمٹ کہتے ہیں OIC کے چارٹر کے مطابق، وہ بلایا جاتا سربراہان کا۔ اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے، کم از کم ڈپلومیٹک فیصلہ ہی کر لیتے، کچھ بائیکاٹ کا ذکر کر دیتے۔ بالکل کوئی ڈاکٹر صاحب، اقوام کوئی ذکر متحدہ نہیں ہوا ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہاں میں چاہوں گا کہ ایک پوائنٹ آپ اور جو ہے وہ اسے کلیئر کر دیجئے گا کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اسرائیل کی مدد کے لیے UK سے بھی فورسز آ رہی ہیں، US سے بھی آ رہی ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اب کھل کے یہ کاروائیاں کر رہا ہے، حلب پہ بھی جو ہے وہ حملہ کیا ہے، تو کیا اس وقت یہ تاثر لینا مناسب ہوگا کہ اسرائیل اس جنگ کو پھیلانا چاہ رہا ہے اور ایک اور مرتبہ عرب اسرائیل کلیش جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس بار کیا یہ بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ڈپلومیٹک سائٹ پر ابراہیم اکارڈ کا بھی مقصد یہی تھا، بغیر فلسطینیوں کو شامل کیے ہوئے، اور جب ابراہیم اکارڈ ہوا تو اس وقت حماس نے کہا کہ یہ ہمارے پیٹ میں چھرا گھونپنے کے برابر ہے، ہمارے پیٹ میں چھرا گھونپنے کے برابر ہے، اور ان کے سربراہ نے کہا، محمود عباس نے، کہ یہ بہت ڈسگریسفل بات ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں جیو پولیٹیکل تناظر میں اس کو بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہوا کہ جب ابراہیم اکارڈ، جس میں ہمارے گلف کنٹریز کے ممالک شامل ہو گئے اور پھر مراکش بھی شامل ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس وقت بھی ان کا کافی دل آزاری تھی، اور وہ اس کا مقصد اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کی طرف جانے کا ایک مقصد تھا، اور گریٹر اسرائیل ایک پورا کانسیپٹ ہے جس میں آپ کا پورا ایک پروگرام رکھ جائے گا، کسی اور دن کر لیجئے گا، تو اس کے تحت وہ تو کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب جب اسرائیل نے دیکھا کہ وہ اب حماس نے ایک دوبارہ اپنا سرفروشی کا ایک جذبہ دکھلایا ہے، اور اب جو ہم پچھلے 30-40 سالوں سے جو ہم بچے، بوڑھے، عورتوں کو بمبارڈمنٹ کے ذریعے اسرائیل مارتا رہا ہے، حماس نے مرتا کیا نہ کرتا یہ حملہ کیا، جو کہ اقوام متحدہ کے
इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उसमें कोई गलत नहीं है। दुनिया इस पर आवाज नहीं उठा रही है, इस्लामिक ममालिक इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। यहाँ वो पर किस मैं तरह आपसे नहीं ये है पूछना कि चाहूंगी डॉक्टर जमील कि जब क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल हमले वहाँ पर किए जा रहे हैं, पानी बिजली सब बंद कर दिया गया है, उसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जंग बस फिर यहाँ तक महदूद नहीं आगे भी बढ़ रही है। ओआईसी का इजलास बुलाया गया हंगामी तौर पर, फिर आप देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है, मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी क्या बनती है, ज़रूरत किस अमर की है? जी, मैं आपको यही आर्टिकल 9 का जिक्र कर रहा था और अब आर्टिकल 1 का भी जिक्र मुझे करना पड़ेगा, लेकिन जो मैं बात मुकम्मल करने लगा था, जब आपने सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ चंद लम्हों में। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी और चैनल पे ये बात हो नहीं रही है। हमास ने जब हमला किया, मरता क्या ना करता जो मैं कर रहा था, जब उनको दीवार से लगा दिया गया और अब भी दीवार से लगाया जा रहा है, बल्कि बहुत शदीद तरीके से लगाया जा रहा है, तो देखना ये है, आप अपने रिसर्चर से और बाकी दुनिया हमारे ओआईसी के ममालिक, उनको चाहिए कि देखें कि इंटरनेशनल कानून क्या है, ऑक्यूपाइड टेरिटरी किसकी है, फलस्तीन की सरजमीन को कब्जा किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक और सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो 242 है उसके तहत ये काबिज है। और अगर कोई अपना कब्जा छुड़वाने के लिए किसी पर अगर एक्शन करता है कोई ग्रोह या कोई तबका, तो उसको इंटरनेशनल कानून की प्रोटेक्शन है और वो है जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन 2649। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल के तरफ कि मुस्लिम दुनिया इस पर क्यों नहीं कदम उठा रही है। क्लस्टर बम इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। हर 30 सेकंड में एक बम मारा जा रहा है। 6000 के करीब बम बरसाए गए हैं नेवी के जरिए, तोपों के जरिए और साथ में हवाई जहाज़ों के जरिए, जिसमें कि तकरीबन उसमें 1600 के करीब फलस्तीनी जाबाज हुए हैं। वो आपने तो रिपोर्ट दिखलाई दी, उसमें औरतें बच्चे भी शामिल हैं। तो इस चीज़ को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये इंटरनेशनल कानून की धज्जियां तो पहले भी उड़ाते रहे हैं। देखिए, तकरीबन 6 से ज़्यादा सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है। और 2 इशारे मैं करता चलूं जो अभी हमारी याददाश्त। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा का भी सहरिश ने भी आपसे पूछा था कि कहाँ मौजूद है और उन्हें क्या करना चाहिए। ओआईसी की जानिब तो इस वक्त मेरे ख्याल में मुस्लिम उम्मा नहीं देख रही है, क्योंकि ओआईसी कोई फैसला ना कर पा रहा है और ना ही शायद उसके बयानिए की वो वैल्यू रह गई है जिसके तहत ओआईसी को बनाया गया था। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलामा साहब ने बताया कि जिस नौयत की मदद की जा सकती है फ़लस्तीनियों की वो की जाए, लेकिन इस वक्त फ़लस्तीन को सिफारती ताल्लुकात की ज़रूरत है कि अपने जो जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी सिफारती ताल्लुकात हैं, उनको खिते के अंदर जो है वो एक साथ जोड़ा जाए। आपके ख्याल में इस वक्त क्या पॉलिसी होनी चाहिए? 2 बातें की हैं, एक तो मुस्लिम उम्मा क्या कर सकती है, यानी मुस्लिम ममालिक, और दूसरी ये कि सफारती लिहाज से फ़लस्तीन को कैसे जोड़ा जाए। जाहिर है ओआईसी का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सफारती लिहाज से भी, और जो उनकी मदद की जा सकती है इंटरनेशनल कानून के दायरे में रहते हुए। मैंने कुछ कानून आपको बता दिए, 1-2 और बता देता हूँ इंटरनेशनल कानून। देखिए, मैं क्योंकि यहाँ जो भी बयान करूंगा वो एक कानून के दायरे में रहते हुए बयान करूंगा, और उसमें इतनी गुंजाइश है, इंटरनेशनल कानून में इतनी गुंजाइश है कि हिम्मत करें ये मुस्लिम कंट्रीज, बल्कि बाहर के ममालिक में जुलूस जलसे निकल रहे हैं, इंसानियत सोच जो इंसानियत कुश जो हमले हो रहे हैं उस पर बाहर के ममालिक में भी हो रहे हैं। आज देखते हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरह लामा साहब ने कहा है, खैर वो तो डेमोन्स्ट्रेशन की जाएगी, लेकिन देखना यह है कि हमारी खारजा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उसको किस तरह दुनिया तक पहुंचाती है। और आपने बात की कि खारजा महाज पर क्या, खारजा महाज पर हमें चाहिए कि हम तमाम मुल्कों से ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत उनके वजारत खारजा में जहाँ जहाँ हमारे एम्बेसीज हैं जाके बताएं, ये बयान करें, ये गर्दाने के इसमें डॉक्टर जमील, एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक छोटी सी चीज और बता दूं ऐड कर लीजिएगा, मुझे बस ये बता दीजिएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिफारती तौर पर हम भी राब्ते करें, उन्होंने कहें कि जिनके लिए कुछ किया जाए। ये बात बड़ी अजीब सी है कि ये मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। हम देख रहे हैं कि इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा है, इजराइल के साथ बरतानिया भी आकर खड़ा हो गया, लेकिन फ़लस्तीनियों के साथ बज़ाहिर तो स्टेटमेंट देके कहा जा रहा है कि जी ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ना तो कोई ऐसी कोशिश हो रही है कि उन तक इमदाद पहुंचे या फिर उन तक सामान पहुंचे, या फिर इस जंग को रुकवाने के लिए वो बाकायदा तौर पर सामने आके खड़ा हो कि भाई ये क्या किया जा रहा है। इस चीज़ के हवाले से क्या राय है आपकी कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा, कबाहत क्या है इसमें?
1.5 अरब मुसलमान सहमे हुए हैं, दबे हुए हैं और उनके पास कानून सामने है। मैंने अभी आपको जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 2649 का हवाला दिया, मैंने अभी आपको हवाला दिया आर्टिकल 9 का जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन सरबराहान का बुलाया जा सकता था, और एक और हवाला सुन लें उसमें आपके जवाब मिल जाएगा, और वो है आर्टिकल 1 का जो सब सेक्शन है, सब आर्टिकल है 8, उसके तहत लिखा हुआ है OIC के चार्टर में, और लिखा क्या हुआ है कि सपोर्ट करें स्ट्रगल को, फलस्तीन के स्ट्रगल को, इसलिए कि इंटरनेशनल कानून भी ये कहता है। और उसके अलावा कि उनकी जो ऑक्यूपेशन है और जो अल-कुद्स और अल-शर्फ उसकी सॉवरन कंट्रोल को हासिल करने के लिए फलस्तीन की मदद की जाए। अब रहा सवाल कि दोबारा उस चीज़ को मैं एक लम्हे के लिए किसी और अंदाज से बता देता हूँ कि इंटरनेशनल कानून रोकता नहीं है किसी भी मुल्क को OIC के कि आप उनकी मदद ना करें। मैंने आपको भी हवाला उसका दिया, और वो मदद भी दामे दरहमे सुखने की जा सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक कलेक्टिव आवाज कुछ ना करें। अगर चलें डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, एक सरबराहान की मीटिंग कॉल करके जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पेश कर दें। 58 ममालिक जब एक साथ जनरल असेंबली में जाएंगे, दुनिया की आवाज मिलेगी, सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल आपने मजबूर ठीक हो कहा। जाएगी। डॉक्टर साहब, इसमें ईरान की स्टैंडिंग आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो अमेरिका खुलकर नहीं बोल रहा कि ईरान सपोर्ट कर रहा है फलस्तीन को, लेकिन उस तरीके से नहीं ये बात कही जा रही, बट क्या पीछे है ईरान, या फिर ईरान अगर है तो क्यों वो इस मामले पर, जो कि एक सही मामला है, संजीदा मामला है, खुलकर सामने नहीं आ रहा? देखिए, ये तो पूरी दुनिया के सामने है कि जितना ईरान ने अपने दायरे में रहते हुए इंटरनेशनल कानून की जितनी मदद की है फलस्तीनियों की, वो और टर्की ने भी और कतर ने भी, वो किसी और ने इतनी नहीं की है। ईरान क्योंकि एक बहुत बड़ी कुव्वत है तो वो उनकी आंखों में खटकता है। याद रखें कि मुस्लिम ममालिक की बारी 1 बाय 1 एंड टर्न बाय टर्न आएगी। अलामा साहब इस चीज़ की शायद तायद करें कि अगर इन्होंने कलेक्टिव आवाज इंटरनेशनल कानून के मुताबिक बबांगे दरा नहीं उठाई तो आज बारी फलस्तीन में है, कल ईरान की होगी, और हम उसके पड़ोस में हैं, नजरें हमारे ऊपर भी हैं। लिहाजा हमें अकल के नाखून तमाम को, और ये जो सरबराहान है मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के, आप देखें कि अगर ये मामला बढ़ गया और ये जो हजारों की तादाद में मैं देख रहा हूँ शहादतें, अगर जिस तरह के 4 लाख फौज, उन्होंने 4.5 लाख फौज इकट्ठी कर ली है 11 मील के टुकड़े में गाजा के सामने, तो ऐसी सूरत में तो वहां एक जेनोसाइड हो जाएगा, और जेनोसाइड के बाद ये सरबराहान फिर ऑफिशियल बयान जितना भी देते रहें, बिल्कुल लेकिन आपने सही कहा है डॉक्टर अवाम साहब कि अवाम जेनोसाइड खड़ी का हो खतरा जाएगी, है, और इस पर अगर अवाम खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल और अगर मुस्लिम उम्मा ने मिलकर यकजबान होकर ना आवाज उठाई है तो जाहिर है आज इनकी बारी कल किसी और की भी हो सकती है। बिल्कुल सही निशानदेही आपने की है डॉक्टर जमील, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।